शेक्सपियर का नाम सुना है? विलियम शेक्सपियर. यस, प्लीज पे अटेंशन. विलियम शेक्सपियर का नाम नहीं सुना है? सुना है? ओके. All right. She rightly said that he is the father of English literature. All right. So before we start this poetry, the name of the poetry is All the World a Stage, and it is written by whom? What is the spelling of Shakespeare? Skespeare. Don't forget that. Okay, William Shakespeare. And this is your poetry number 1.4. Okay. Now before we go ahead with the poetry and the detailed discussion of the same, first we should have a warm-up activity. Let us have icebreaker. Now talk to your friends about all the things related to 7, the digit 7. जैसे कि first one is given 7 wonders of the world. Can you name any 2 or 3 at least from 7 wonders of the world? Do you know some of them? Taj Mahal, you know, because it belongs to India. Yes. And what else? Yeah, you were saying something. Somebody said. Eiffel Tower, it was before, now it is not there in the list of 7 wonders of the world. See, 7 wonders, then we will talk about 7 continents, then 7 colors of the rainbow, 7 notes of music, 7 seas of the world. The first one is 7 wonders of the world, in which we must have heard Great Wall of China, right? Please write over there in your notebook, or maybe you can write in your textbook. We should know the 7 wonders of the world. So let us write once at least in our notebook or in a textbook. First one is Great Wall of China. Then the very familiar one, just you said, Taj Mahal, the Taj Mahal. Write down. Please write down. Somebody said from here Machu Picchu, right? So M-A-C-H-U, write down M-A-C-H-U, Machu, and then Picchu. In Picchu there is double C, okay? Machu Picchu. Third one is Machu Picchu. I hope you all are writing behind. Okay. Then we have the Roman Colosseum. Roman, Colosseum. Then we have Great Wall of China, we discussed, right? Now then we have Christ, the Redeemer statue. Christ, the Redeemer statue. Christ, C-H. May I rub these? Then we have Chichen Itza. Chichen Itza.
Last one is Petra. Done 7. You should remember this. Okay. Now please tell me 7 continents of the world. Okay. Very good. Very good. Antarctica. Done. Please note it down. ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, पहले ए के सारे ले लेते हैं अल्फ़ाबेटिकली. राइट डाउन. ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, अफ्रीका, North America, South America, and the last one is Europe. Please tell me the 7 colors of the rainbow. Vibgyor. In short we say Vibgyor. Vibgyor. V stands for I, B, W, sorry, B, G, Y, O, R. Vibgyor. Okay, 7 notes of the music. Yes, sa re ga ma pa dha ni sa. Ni. Sa re ga ma pa dha ni. Write down. S A A sa re ga ma pa dha ni. 7 seas of the world. Very good. One by one, just raise your hand. You said Indian Ocean. Somebody said from this end. Indian Ocean, write down. One by one we will write. Indian Ocean, Arctic Ocean. Please note it down. You are not writing, beta. I will check the textbook later on. Take out your pen, then write. I repeat, Indian Ocean, Arctic Ocean, Antarctic Ocean, then South Atlantic, North Pacific and South Pacific. Arctic, Indian, Antarctic, then North Atlantic, South Atlantic, then North Pacific, South Pacific. Yeah, these are seas. Achha, these are oceans. Yeah, correct. So what are the seas then? You have written already. Very good. Mediterranean Sea, Black Sea, Red Sea, Persian Sea. Right? These are the seas. So you have studied in your geography, I guess. Very good. Okay, see the next one. Life is compared to many things. Now, write down 7 things that life can be compared to and justify the comparison. Yes, we will talk about that part later on. It is all about the geography, which you should know. You are in 10th standard, so you should know the difference between ocean and the sea. Okay, so what was my question? You just have to compare the thing with the many things. For example, life is a keyboard. If I say life is a keyboard, so yes, life is a keyboard because if you press right key, you'd have typed a good destiny. मतलब अगर आप अच्छा काम करते हो, अच्छा बटन दबाते हो, तो आपके साथ अच्छा होता है. तो life is like a keyboard. Do you all agree?
अगर तुमने गलत बटन दबाया तो तुमको क्या करना पड़ता है, फिर डेस्कटॉप पे अंडू करना पड़ता है, विच इज़ रॉन्ग, है ना, आपको बैक जाना होता है। तो ओके, अगर मैं कहूँ लाइफ इज़ अ सीड, एक बीज है, तो व्हाट विल बी योर एक्सप्लेनेशन ऑन द सेम? जैसा बीज बोओगे वैसा पाओगे, राइट? सो यू शुड नेवर नरिश द plants which is not useless, or you don't need that particular thing. So you have to nourish like how you nourish the plant. सीड डाला है तो आपको उसके बाद उसको rear up भी करना है. The next one is elevator. Life is an elevator. Elevator मतलब लिफ्ट. तो लाइफ में अप एंड डाउन होते रहते हैं, राइट? सो यू हैव टू अग्री विद दिस पॉइंट दैट लाइफ में कभी सुख तो कभी दुख होता है, कभी अप्स कभी डाउन, लाइक एन एलिवेटर. तो सेकेंड वन में यू हैव रिटन सीड, सीड लिख दो. देन थर्ड वन में राइट डाउन एलिवेटर. नाउ आई हैव वन मोर थिंग, अनियन. लाइफ इज लाइक एन अनियन. कांदा, प्याज. क्यों? प्याज कैसे है? हमारी जो लाइफ है वो प्याज कैसे है? बिकॉज यू पील वन आफ्टर द अदर लेयर. मतलब आपकी लाइफ में भी ऐसे लेयर्स होते हैं, पहले आप छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, पील ऑफ हुआ, राइट? उसके बाद दूसरा जो है वो पील ऑफ हुआ, फिर क्या हो गए आप? अभी चाइल्डहुड में आ गए, अभी थोड़े से टीनेजर्स में आ गए, उसके बाद जवान हो जाओगे. सो क्या होगा? पील ऑफ होता जाएगा, लाइक एन अनियन. राइट डाउन द नेक्स्ट वन इज अनियन. नाउ लाइफ इज ऑल्सो अ जिगसॉ पजल. जिगसॉ पजल पता है क्या होता है? वो पजल गेम होता है. सो क्यों बोला है जिगसॉ पजल? उसमें वर्ड्स हमें मिलाना होता है, मतलब हम लोग उठाते हैं एंड देन वी पुट द अल्फाबेट, दैट इज जिगसॉ पजल. सो यू हैव टू पुट अप द पीस टुगेदर. अपनी लाइफ में भी व्हाट यू हैव टू डू, आपको अपनी लाइफ में भी यू हैव टू पुट अप द पीस टुगेदर. अगर आप मिलके नहीं रहोगे सबके साथ तो डेफिनेटली आपका पजल सॉल्व नहीं होगा, लाइक जिगसॉ पजल. लाइफ इज लाइक अ रिवर ऑल्सो. रिवर कैसे होगा? बहते रहना चाहिए. वेरी गुड. नहीं बहोगे, कहीं रुक जाओगे तो कैसे कन्वर्ट हो जाओगे? गटर में कन्वर्ट हो जाओगे. पानी जो कीचड़ होता है ना, एक जगह जमा होने पर फिर वो बास मारने लगता है. तो हमें क्या करना है? वी हैव टू फ्लो लाइक अ रिवर, जो बहता जाता है और अपने साथ सब कुछ साफ करते जाता है, कभी रुकता नहीं है. हमारी लाइफ भी रुकनी नहीं चाहिए. अगर हम रुक जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, समटाइम वी डू दैट बिकॉज ऑफ फेलियर, तो अगर वो कर देते हैं तो क्या होगा? या तो आप सुसाइड कर लोगे, गिव अप करते हैं लोग मोस्टली, या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना? वी टेक सो मैनी बैड स्टेप इन आवर लाइफ विच इज़ नॉट गुड, नॉट फॉर आवर फैमिली, नॉट फॉर अस individually, right? The next thing is you have to match the appropriate ages with the stages. Can you see on page number 23? You have to match it with the age group to stages. If I talk about birth से लेके 2 years तक का, so what do we call it? Babyhood और infancy also we say. Infancy मतलब जब हम छोटे से बच्चे होते हैं, एकदम छोटे से, गोदी वाले. So that is infancy. Now 3 years to 12 years. Very good. Childhood. Now you are in which stage, by the way? 13 years to 17 years of age will be your teenage. Okay, teenage. Next one is 18 years to 44 years, adulthood. Very good. About 45 years to 60 years, middle age. 65 years to 75 or 80 years, senior citizen, or we also call it elderly person.
Last one is above 80 years. ओल्ड एज. एंड यू नो व्हाट, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, 80 के ऊपर हो जाते हैं, तो हम वापस से बच्चे बन जाते हैं. आपने देखा होगा वापस से कुछ ऐसे बूढ़े लोग होते हैं जो बेड पे ही दे पी, दे एक्सक्रीट, राइट. जो बुढ़ापे में जाके आपने बहुत लोगों को देखा बिस्तर पे ही वो लोग सूसू पॉटी सब करते हैं. ऐसे होंगे आपके दादाजी या कोई उनके भी जो बूढ़े घर में, कुछ आपने गाँव में देखा होगा. मम्मी लोग या उनके लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन दे अपॉइंट समटाइम, और समटाइम दे डू ऑन देयर ओन. तो साफ सफाई भी करनी पड़ती है. जैसे बच्चा कैसे करता है, जब पैदा होता है तो बिस्तर पे ही करता है ना, उसको क्या पता कि उठ के चल के जाना है, उतना तो चल भी नहीं पाता है. वैसे ही जब हम बूढ़े हो जाते हैं ना, 80 ईयर्स के बाद हो जाते हैं, तब हमारा ना वापस से दूसरी बार चाइल्डहुड आ जाता है, बचपन आ जाता है. बेड पे ही एवरीथिंग वी डू. एंड नॉट ओनली दीज थिंग्स आई एम सेइंग, बल्कि वो डिमांडिंग, जैसे अब एक बच्चा कैसे डिमांडिंग होता है, मुझे यही चाहिए, मुझे यही करना है, मैं ये नहीं खाऊंगा. सेम चीज़ आप जब 80 ईयर्स के ऊपर हो जाते हो ना, तब होता है. और दांत की बात कर लो, दांत उनको नहीं होते हैं, मतलब टूट जाते हैं ना सारे. तो जैसे बच्चे को सॉफ्ट फूड देना पड़ता है पीस के, ग्राइंड करके, वैसे ही 80 ईयर्स के बाद भी हमें देना पड़ता है. मेरे खुद फादर इन लॉ, ही इज़ 80 अबव. वो एप्पल जो है ना, वो बिल्कुल भी कट करके नहीं खा पाते हैं. उनको क्रश करके देना होता है, ग्राइंड करके देना होता है. उनसे कोई भी कड़क चीज़ नहीं खाई जाती है. सॉफ्ट दे दो, खुशी खुशी खाते हैं जैसे एक बच्चा. और कभी कभी ही टॉक लाइक अ चाइल्ड ऑल्सो. सो आई हैव अ चाइल्ड एट माई होम ऑफ 80+ ईयर. Okay, so that was it about the warm up. Now let us see about William Shakespeare, our poet of this poetry. Okay, now please see page number 24. First I'm going to read about his information and then we will discuss a bit. William Shakespeare was an English poet, playwright. What is playwright? What is play? Yeah, ड्रामा का स्क्रिप्ट. ओके, सो ही यूज टू राइट प्ले का स्क्रिप्ट. एंड ही वॉज ऑल्सो एन एक्टर. एक्टर मीन्स, yes, last boy, please sit properly. What is an actor? Yes, so he himself being the poet, at certain moment there was a time he used to act also. Widely regarded as the greatest writer in the English language and also regarded as the world's prominent dramatist. Dramatist means, again, who write the drama. He is often called England's national poet. Remember this, underline this. He is called as England's national poet. And Bard of Avon. Bard of Avon. Now, dear student, आपके हर इस ब्लू बॉक्स में जो सेकेंड पैरा होगा आपके, कि हर चैप्टर में, हर पोइट्री में ये ऐसा पैराग्राफ दिया होगा अबाउट दी राइटर, अबाउट द पोएट. तो पहला जो पैराग्राफ होगा वो होगा पोएट का इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. और दूसरे वाले पैराग्राफ में आपको उस चैप्टर का या उस पोइट्री का छोटा सा समरी दिया होगा. मतलब थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली पोइट्री में या चैप्टर में है क्या. देखो इसमें भी दिया हुआ है. दिस पोम, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पोइट्री लिया कहाँ से है. दिस पोम इज टेकन फ्रॉम हिज प्ले. उन्होंने, मैंने आपको पहले भी बताया, ही इज़ अ प्ले राइटर. तो उन्होंने एक प्ले लिखी थी. उस प्ले का नाम है As You Like It. The name of that play is As You Like It. So this poetry is actually, referred, or you can say taken or excerpt, we say, छोटा सा पार्ट उसमें से लिया गया है और इस पोइट्री में आपको बताया है डिटेल में. So the poem is taken from this play, As You Like It. Here, in this part of this play,
he actually compared the world as a stage. वो कहते हैं जो दुनिया है ना, ये एक स्टेज है जहाँ पे हम जो हैं, हम सारे लोग, हम क्या कर रहे हैं, एज अ कैरेक्टर हम अपना अपना कैरेक्टर रोल जो है ना, रोल अपना निभा रहे हैं, किरदार निभा रहे हैं. Here he compares the world to a stage where the drama of human life is enacted. हम इनेक्ट करते हैं. इनेक्ट मतलब जो हम स्टेज पे खड़े होकर ड्रामा करते हैं, परफॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इनेक्ट. ओके. और ये जो एज यू लाइक इट है, उसमें एक्चुअली एक कैरेक्टर है जैक्स. द नेम इज, व्हाट हैपेंड सडनली? All right. Jax. Remember this name. This is one of the character mentioned in this particular play. As you like it. और इसके अंदर ये जैक्स करके एक कैरेक्टर है. उसने बोला है कि जो पूरी दुनिया है ना, वो एक स्टेज है. ठीक है? So Jax actually speaks about the 7 stages, or the stages which is going to be there in this poetry. We are soon going to see what numbers of stages we are going to have. So let us start with the first line. But before that, I would like you all to just recite it in your mind. Please start the recitation. Page number 24. Recite the poetry. Or we all can do it together. I will speak and you are going to repeat after me. Okay? All the world is a stage. And all the men and women merely players. They have their exits and their entrance. And one man in his time plays many parts. His acts being 7 ages. At first the infant. Mewling and puking in the nurse's arms. Then the winning schoolboy with his satchel. And shining morning face. Creeping like snail. Unwillingly to school. And then the lover. Sighing like furnace. With a woeful ballad. Made to his mistress eyebrow. Then a soldier. Full of strange oaths. And bearded like the pard. Jealous in honor. Sudden and quick in quarrel. Seeking the bubble reputation. Even in the cannon's mouth. And then the justice. In fair round belly with good cap and line. With eyes severe and beard of formal cut. Full of wise saw and modern instance. And so he plays his part. The 6th age shifts into the lean and slippered pantaloon. With spectacles on nose and pouch on side.
His youthful hose well saved a world too wide. For his shrunk shank and his big manly voice, turning again towards childish treble pipes, and whistles in his sound, last scene of all, that ends this strange eventful history, is second childishness and mere oblivion. Sounds, speed, sounds, eyes, sounds, taste, sounds, everything. The name of the poet is William Shakespeare. Alright, now see the first line. Now before we start the discussion in detail, I would like to ask you all, what is the rhyme scheme of this poetry? I taught you how to find out the rhyme scheme, right? So please tell me, what is the rhyme scheme of this particular poetry? Can you see in first line the last word is stage, second line players, third one is entrance, fourth is parts, then again infant. So I guess it is not rhyming with any of the line, any of the word. So you can say it is free verse. What is free verse? What is free verse? Free verse मतलब क्या होता है? When there is no rhyming. Okay? There is no rhyming word in this. The last we have to check, the last word. So, no rhyming. Alright. So, before we go ahead with the detailed discussion, first I told you the first stage is infancy. The second stage which is given, that is a schoolboy, young schoolboy. Third you all can see in the middle of the stanza, the lover. After lover there will be soldier, okay? The lover. Then the soldier. Write it somewhere near the text. And the powerful judge or justice. Powerful judge. What powerful judge normally do? They give justice, right? One, two, three, 4, 5. Sixth stage is old age. And the seventh stage is oblivion, or you can say death stage. ओब्लिवियन मतलब एक ऐसा एज आता है हमारा जब हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, अनअवेयर होते हैं. जैसे हमको भूलने की बीमारी बुढ़ापे में जाके ज़्यादा हो जाती है ना. हम कुछ बोलते हैं और कुछ और ही करते हैं. बोलते हैं अरे बोला तो था, बताया तो था. और घर के भी जो लोग हैं बूढ़े इंसान को बोलते हैं आप ऐसा मत करना, फिर भी वो कर देता है. सो दैट इज़ ओब्लिवियन. ओब्लिवियन मीन्स व्हेन यू आर अनकॉन्शियस और अनअवेयर. Okay, I hope you all have noted down the stages which is discussed, which is given in this poetry. Now I will recite the poetry and you are going to tell me which stage it belongs to, those particular line. Okay, infancy, schoolboy, then the lover, then the soldier, then powerful judge, and then for the justice, and then old age, and last one is death. Now all the world is a stage,
ऑल द मैन एंड women merely players. जो भी दुनिया में आदमी, औरत, लड़की, लड़का है, वो एक कैरेक्टर है. दे ऑल आर प्लेयर. प्लेयर मीन्स नॉट द गेम प्लेयर, द प्लेयर ऑफ द कैरेक्टर. बेसिकली कैरेक्टर को यहाँ पे प्लेयर बोला है. आपको अपना रोल जो निभाना है ना, दैट वर्ड हियर फॉर दैट पर्टिकुलर रोल और फॉर द कैरेक्टर, द वर्ड इज गिवन प्लेयर. They have their exits and their entrance. You must have seen some stage performances. उसमें कुछ लोग exit करते हैं, कुछ लोग entry करते हैं, है ना. जिसका performance रहता है वो entry मारता है और जिसका हो जाता है वो exit करता है, right. तो देखो third line, they have their exits and their entrance. ऐसे ही हमारी लाइफ में भी होता है. हम जब पैदा हुए तो क्या हुआ, एंट्री हुई हमारी. जब हम मर जाएंगे बूढ़े होकर तो एग्जिट हो जाएगा. वैसे ही किसी भी स्टेज पे भी ऐसी परफॉर्मेंस होता है. जब उनको कोई पर्टिकुलर नाटक दिखाना है जहाँ पे बच्चा पैदा हो रहा है तो बच्चा एंट्री मारता है. जब उनको दिखाना है कि वो बूढ़ा हो गया, मर गया, तो एग्जिट दिखाते हैं, है ना. दे प्ले देयर रोल वेरी नाइसली. हाउ वी आर प्लेइंग आवर रोल इन आवर रियल लाइफ. फोर्थ लाइन, सी हियर, and one man in his time plays many parts. एक ही इंसान बहुत सारे किरदार निभाता है. जैसे तुम्हारी लाइफ में तुम कभी बच्चे पैदा हुए रहोगे, उसके बाद थोड़े बड़े हुए, अभी तुम लोग अभी टीनेजर्स हो गए हो. अब टीनेजर के बाद क्या होगा, तुम अडल्ट हो जाओगे, फिर मिडल एज में जाओगे, फिर ओल्ड एज जाओगे, फिर बाद में तुम्हारी डेथ भी होगी. बिल्कुल होगी, सब मरते हैं. अगर आए हो इस दुनिया में, एंट्री मारा है तो एग्जिट तो होना ही है. तुम एक दिन मरोगे, मैं एक दिन मरूंगी, ये निश्चित है. सारे पार्ट्स आपने प्ले किए कि नहीं किए. बचपन में आप पैदा हुए, वो आपने अपना पार्ट प्ले किया. फिर आप थोड़े और बड़े हुए, फिर आपने वापस से अपना पार्ट जो है रोल निभाया. उसके बाद अभी आप टीनेजर्स हो, आपका रोल क्या है, व्हाट इज योर रोल नाउ, राइट नाउ, टू स्टडी, to follow the instruction whatever is said by your parents or by your teachers, and simultaneously play a little, to have fun a little. So you all are performing your role properly. But if you are not doing anything of these things which I mentioned, then you are not performing it properly up to the mark. तो ऐसा कोई है जो तुम लोग अपना रोल नहीं निभा रहे हो अभी, तुम्हारे इस तुम्हारा जो पार्ट है, तुम्हारा जो अभी रोल है, क्या तुम अपना रोल प्ले कर रहे हो प्रॉपरली? क्या ऐसा कुछ है दैट इज डिस्ट्रैक्टिंग यू? ऐसा कुछ है? नहीं है. स्पेशली 10th बोर्ड में तो नहीं होना चाहिए, वरना वो इट विल अफेक्ट योर रिजल्ट्स. देन योर मार्क्स विल बी get affected, right? So better you should pay attention to the role right now. What is your role in your 10th standard? पढ़ना, सिंसियरली पढ़ना. बाकी मस्ती मजाक ये सब 11th में कर सकते हो, जो भी मस्ती करनी है. 11th है ही उसी के लिए. देन 12th में यू हैव टू अगेन बी सीरियस, बिकॉज बोर्ड्स है ना. और बोर्ड्स जो होते हैं उसके जो मार्क्स होते हैं बेटा, ये फ्यूचर में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस है. अगर आपकी मार्क्स कम आई ना 12th में, और जिस इंसान की ज़्यादा आएगी, फॉर एग्जांपल तुम्हारी अच्छी आई और इसकी अच्छी नहीं आई, तो कहीं पे जॉब जो होगा, तुम्हें मैं दूंगी जॉब लेकिन इसको नहीं दूंगी. वाई? क्योंकि आपकी मार्क्स अच्छी है. और मार्क्स क्यों अच्छी है? क्योंकि आपने अपनी एज में जो आपका रोल है वो प्रॉपरली प्ले किया, और आपने अपनी एज में जो आपको रोल प्ले करना चाहिए था वो आपने नहीं किया. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ओके, डोंट टेक इट पर्सनली. So his acts being 7 ages. Now the poet actually described here are stages in 7 different parts. So as I told you, these are the 7 ages. At first, the infant. First one is infant. Mewling and puking in the nurse arms. छोटे बच्चे जो होते हैं क्या करते हैं? देखो यहाँ मीनिंग दिया हुआ है, वॉमिटिंग एंड रोते हैं. छोटे बच्चे क्या क्या आ रोते रहते हैं और उल्टी बहाते हैं, थोड़ा दूध पीते हैं और फिर उल्टी बहाते हैं, पॉटी करते हैं, फिर पीते हैं, फिर पॉटी करते हैं. मतलब उनका जो ये काम है इन्फेंट में,
वो करते हैं, चाहे वो नर्स का आर्म हो या चाहे किसी का भी आर्म हो. So that is given in the first stage, that is your infancy. Second, when you are a school boy, जब आप स्कूल जाते हो, कुछ फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड से ही बच्चे स्कूल मतलब रेगुलरली पूरा पूरा दिन स्कूल में रहते हैं, तो सम टाइम व्हाट यू डू, यू क्राई अ बिट, नहीं जाना है मम्मी, मुझे नहीं जाना है. कभी कभार ऐसा तुमने आजू बाजू के बच्चों को देखा होगा, अपना याद नहीं भी होगा तो, है ना. So winning, can you see the word winning over there? WHINING. Please underline that word and write down. When you cry with high pitch or loud cry is called as winning. Yes. If you have any doubt, please talk to me. Don't talk to your partners, please. If you have any confusion, any doubt, directly ask me. Okay? So winning means high pitch cry. So what happens when you are a young school boy? Sometime at that age you cry. You don't want to go school. Maybe there are certain reasons. जैसे कभी हो सकता है आपने होमवर्क नहीं किया हो तो उस दिन स्कूल जाने का मन नहीं होता है. अगर स्कूल में उस दिन टेस्ट है, क्लास टेस्ट है, तो कई बार बच्चे छुट्टी ले लेते हैं. या समटाइम यू आर नॉट कीपिंग वेल, तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम नहीं जाना चाहते हो, ऐसा होता है ना. सो यू समटाइम क्राई विथ हिज सैशल. सैशल का मीनिंग से इट इज गिवन स्कूल बैग. अपने स्कूल बैग के साथ यू गो. एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, क्रीपिंग लाइक स्नेल मीन्स यू डोंट वांट टू गो. यू आर willingly not going to school, unwillingly to school. See the line is given, 9th line, unwillingly to school. तो आपका फेस जो है कभी कभी चमकता है, मतलब खुश होके तुम स्कूल जाते हो. एंड सम टाइम यू बिहेव लाइक अ स्नेल. व्हाट इज स्नेल? स्नेल जानते हो, देखा है कभी स्नेल कैसे चलता है? धीरे धीरे. कभी कभी तुम्हारा मन नहीं होता है, मम्मी धक्का देती है, अरे नहीं मम्मी नहीं जाना है ना. यू से दिस समटाइम. सो यू समटाइम बिहेव, यू क्रीप लाइक स्नेल. क्रीपिंग मीन्स चलना नहीं होता है, वो रेंगना हो जाता है बेसिकली. नहीं जाना है. कितने बच्चे तो नीचे लेट जाते हैं ज़मीन पे, मम्मी मुझे नहीं जाना है, राइट. तो ये समटाइम इट हैपन्स व्हेन यू आर अ स्कूल बॉय. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट वन? Oh, then the soldiers, and then your powerful judge. All right, see the next line, and then the lover. The next one is, third one is lover. So now in lover what you do? You actually work under the furnace also, with furnace also. furnace मतलब भट्टी. मतलब ये एक ऐसा टाइम है जब आप जो है ना आहें भरते हो, जैसे एक भट्टी में से गरम गरम, देखा है कभी वो जिसमें ब्रेड्स बनते हैं, या कुछ फर्नेस जिसमें गरम गरम चीज़ें कोयला डाल के बनाते हैं, विथ अ वोफुल बैलेड. और जब जब कोई लवर होता है, आशिक होता है, उस समय किसी से प्यार करता है तो गाने भी गाता है. क्यों? कभी कभी दुखी वाले गाने भी गाता है, क्यों? उसका दिल टूट जाता है. कैन यू सी द वर्ड woeful ballad? Woeful, see what is the meaning of woeful ballad? Sad poetry और sad songs. अब lovers लोग कब sad songs गाते हैं? जब उनका दिल टूट जाता है, लड़की मना कर देती होगी या फिर लड़की की किसी और से शादी हो जाती होगी. अब देख लो कितनी हंसी निकल रही है तुम लोगों की. ये लवर्स निकाला, लड़की ने दिल तोड़ा, तो यू गाइज आर नाउ स्पीकिंग, पार्टिसिपेटिंग. आजकल के बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो गए हैं. मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, देन द सोल्जर. अब बात हो रही है द नेक्स्ट स्टेज, सोल्जर्स की. Full of strange oath and bearded like the pard. Pard means leopard. यहाँ पे leopard को बोला है pard, short में.
सेकेंड लास्ट गर्ल. द नेक्स्ट वन इज सोल्जर. तो सोल्जर की स्टेज में हम क्या करते हैं, अपने काम के प्रति हम इतनी ज़्यादा होते हैं, लीन होते हैं. ओथ, ओथ मतलब कसम लेना. तो हम जब सोल्जर वाले स्टेज पे आते हैं, मतलब जब ज़रूरी नहीं कि सारे लोग सोल्जर बन जाते हैं, आप अपना अपना काम करते हो. जैसे मैं टीचिंग कर रही हूँ, आपके पापा किसी ऑफिस में कुछ जॉब पे होंगे, किसी के पापा बैंक में होंगे, किसी का कोई कुछ और काम करता होगा. सो दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड हियर एज सोल्जर हु इज परफॉर्मिंग देयर वर्क, हु इज एक्चुअली टेकिंग द ओथ. ओथ मतलब कसम लेना. कसम लेना मतलब काम करना प्रॉपरली. एंड bearded like the part, bearded like the leopard. leopard कैसे काम करता है और कैसे वो दिखता है, देखा है आप लोगों ने leopard को. so how they look. तो वैसे ही एक leopard के जैसे काम करते हैं. jealous in honor. honor मतलब what is the meaning of honor. honor का मतलब can you see the word HONOUR. बेटा यहाँ पे H जो है ना इज साइलेंट लेटर एंड दैट इज वाई वी से ऑनर. एंड दैट इज वाई वी से ऑनर. H इज साइलेंट और इसीलिए इसके पहले हम आर्टिकल एन यूज करते हैं, क्योंकि AEIOU में जो भी है वावल्स उसमें हम एन लगाते हैं. तो यहाँ पे लेटर H है लेकिन हम लगाते हैं एन है क्योंकि हमारा प्रोनाउंसिएशन ओ से हो रहा है. सो AEIOU, AEIOU ये जो होता है इन सब में हमें क्या लगाना होता है, एन. तो इसका प्रोनाउंसिएशन हॉनर नहीं होता है, ऑनर. जैसे एक दूसरा वर्ड है ऑनेस्ट, HONEST. सो H इज साइलेंट एंड दैट इज वाई ये ऑनेस्ट वर्ड से पहले हम एन लगाते हैं. एन ऑनेस्ट मैन. रिमेंबर दिस. ओके. नेक्स्ट वन, सडन एंड क्विक इन क्वारल. हम जब ये सोल्जर वाली एज में होते हैं ना, हम बहुत क्विकली काम करते हैं, सडन होते हैं, मतलब हर चीज़ में एकदम फास्ट होते हैं. और हाँ, साथ ही साथ अगर कोई रिस्पेक्ट ना दे, कोई ऑनर ना दे, तो हम क्वारल भी करते हैं, झगड़ा भी करते हैं. इस एज में ना हम लोगों के अंदर रिस्पेक्ट हम लोगों को बहुत चाहिए. कौन सी एज में, व्हेन यू आर एट द एज ऑफ सोल्जर. सीकिंग द बबल रेपुटेशन. बबल रेपुटेशन का मीनिंग अच्छा यहाँ नहीं दिया है. बबल रेपुटेशन मतलब एक इज्जत जो हमको सोसाइटी से मिलती है, एक प्राइड, अपना एक जो स्टेटस है हमें वो अच्छा चाहिए. लोगों से हम लोगों को क्या चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, अच्छी रेपुटेशन चाहिए. और हम लोगों को अपनी लाइफ में इस एज में, सोल्जर वाली जो स्टेज होती है, इस स्टेज में हमारा जो लाइफ होता है उसमें सबसे ज़्यादा इज्जत हमको लोगों से चाहिए. आर प्राइड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन आर लाइफ. सोल्जर का क्या होता है, एक सोल्जर जो एक सिपाही होता है, एक फौज में जो सिपाही होता है, उसकी जान बोलते हैं ना, जान से ज़्यादा उसका क्या है, अपने देश का इज्जत. राइट. अगर हम जवानों की बात करें जो बॉर्डर पे लड़ते हैं, तो उनके देश की इज्जत ज़्यादा प्यारी होती है. तो यहाँ पे सोल्जर बोला है, नॉर्मली बोला है कि इस एज में आप लोग भी जब पहुँचोगे, यू विल बिहेव लाइक अ सोल्जर. और तुम अपने देश के इज्जत के लिए नहीं, तुम अपनी इज्जत के लिए वहाँ पर एक्सपेक्ट करोगे लोगों से कि मुझे इज्जत मिले. आप देश के लिए तो नहीं लड़ रहे हो, आप अपने लिए लड़ते हो. इस एज में आपको सबसे इज्जत चाहिए. सो योर प्राइड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन योर लाइफ. ओके, रिमेंबर दिस. Even in the cannon's mouth means facing great danger to life. And then the justice. अब ये पावरफुल जज वाला स्टेज आ गया, जहाँ पर आप भले ही कितने भी डेंजर में हो. Then the justice in fair round belly with good capon lined. With good capon lined mean with excess fat from the careless eating habit. अब ये सोल्जर एज के बाद एक ऐसा एज आ जाता है जब आपको खाना पीना जो है ना मस्त खाते हो और मस्त सब पेट बढ़ा लेते हो. किसी किसी के पापा लोगों का देखो पेट बढ़ जाता है. ये वो कौन सा एज होता है, ये वाला पावरफुल जज
at that time they do justice. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? In fair round belly with good cap and line. With good cap and line का meaning is because at this stage you have careless eating habit. कुछ भी मतलब बाहर जाते हैं, बाहर का भी खा लिया, घर में मम्मी ने पकौड़े बनाए, पकौड़े भी खा लिया, उसके बाद मम्मी ने खाना बनाया वो भी खा लिया, मतलब घर में जो पापा मम्मी का बता रही हूँ, तो पापा खा लेते हैं, पापा खा लेते हैं, फिर मम्मी बोली कि अरे अभी भूख लगी है, खाना बनाओ क्या? बोलते हैं हाँ भूख लगी है, बनाओ। ऐसा होता है, कभी कभी हम लोग का पेट भर जाता है, मम्मी ने कुछ स्नैक्स बनाया, कुछ डोसा वोसा बनाया, तो हम बोलते बस मम्मी अब तो मैं डिनर नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। बट फिर मम्मी जब पापा से पूछने जाती है एट दिस एज, तो पापा बोलते हैं हाँ हाँ मेरे लिए रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, मेरे को तो भूख लगी है। होता है ऐसा कभी? सो दिस इज एक्चुअली व्हाट, एट दिस स्टेज उन लोग खाने पीने की जो हैबिट होती है, इट इज़ वेरी केयरलेस। दिस एज जज लोगों को देखा है कोर्ट में, टीवी में देखा रहेगा ना, जज लोग कैसे मोटे से आके बैठते हैं, हाँ ऑर्डर ऑर्डर, मोटा सा होता है वो। सो दे ऑल्सो हैव द केयरलेस हैबिट ऑफ ईटिंग। एक मूवी मैंने देखी थी, उसमें भी एक जज था, वो तो उधर ही अपने जजिंग वाली प्लेस पे भी खाता रहता था बैठ के। हाँ करेक्ट, जॉली LLB, वो ग्रेट, अरशद वारसी है उसमें। विथ आईज सीवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट। उनकी आंखें जब आप देखोगे ना एट दिस स्टेज, उनकी आंखें बहुत सीरियस दिखेगी आपको, और दाढ़ी तो होती है बराबर, फॉर्मल कट भी होता है, लेकिन अच्छे से पापा लोग शेविंग वगैरह कटिंग वगैरह भी करवाते हैं दिस एज। फुल ऑफ वाइज सॉ एंड मॉडर्न इंस्टेंस, मतलब उनसे आप जब भी बात करो वो आपको ज्ञान ही दे रहे होंगे, कुछ ना कुछ बोल रहे होंगे। तो सॉ मीन्स, सी इट इज गिवन हियर SAWS, मतलब सेइंग्स, मतलब आपको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, हालांकि आपको लगता है कि ज्ञान दे रहे हैं, बट एक्चुअली वो सही बोलते हैं। Whenever I sit with my father, dear student, I literally take him very seriously, और मुझे लगता है वो सही बोल रहे हैं। मुझे क्यों लगता है कि वो सही बोल रहे हैं? क्योंकि उनको मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस दुनिया की। मैं उनसे बहुत छोटी हूँ पापा से, तो मेरे पापा जब भी, आज भी जब मैं अपने घर जाती हूँ, या मेरे फादर इन लॉ या मेरे हस्बैंड, वो भी मुझसे बड़े हैं, तो हमसे जो भी बड़े हैं ना बेटा, वो एक्चुअली ज़्यादा दुनिया देखी होती है, ज़्यादा जानते हैं, और इसीलिए उनका वो sayings, they speak, they saw, SAWS, the word is given in this poetry, wise saw, wise saying, मतलब उन लोग सही बात बताते हैं हमको। और इस एज में जाके when they are powerful judge, they actually give proper justice to the people around them, वो अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, ठीक है, मॉडर्न चीज़ों को भी लेके थोड़े सा, और वो अपना जो पार्ट है बहुत बखूबी प्ले करते हैं। उनके एज में तुम भी जब चले जाओगे बेटा, तो तुम भी ऐसे ही करोगे। तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं पापा जैसे हैं, मैं वैसा नहीं करूँगा अपने बच्चों के साथ, बट व्हेन यू गो टू दैट पर्टिकुलर स्टेज, यू विल ऑल्सो गिव वाइज सजेशन, वाइज थॉट्स टू द पीपल, एंड यू विल ऑल्सो हैव दिस हैबिट ऑफ केयरलेस ईटिंग, हो जाता है। Then the sixth stage starts, that is old age. The sixth age shifts into lean. जब हम ओल्ड होते हैं, आपने देखा होगा मोस्टली ओल्ड पीपल ना पतले से होते हैं। लीन मतलब पतला दुबला। अंडरलाइन द वर्ड लीन, LEAN, एंड राइट अबव इट स्लिम ट्रिम, पतला दुबला, लीन। इट इज फोर्थ लास्ट लाइन, लीन, LEAN. Into lean and slippered pantaloons. Pantaloons मतलब लूज क्लोथ्स पहनते हैं जब बूढ़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा ढीला ढीला सा पैजामा, या गांव में आपने देखे होगी धोती पहनते हैं सफ़ेद कलर की, ढीला ढीला होता है, अच्छा सा हवा भी पास होता है, लूज रहता है, वाइट कलर रहता है ना, क्योंकि उन लोगों को मतलब उस एज में कभी गर्मी इतनी लग जाती है, कभी ठंडी इतनी लगती है, यू नो सडन उनका चेंज होता है बॉडी टेम्परेचर। सो उस एज में एट द एज ऑफ सिक्स्थ स्टेज, दैट इज द ओल्ड एज, उन लोगों का बॉडी पतला हो जाता है, लीन हो जाता है, प्लस उनके कपड़े जो हैं वो
ढीले ढीले लूज रहते हैं। तो पैंटालून्स को अंडरलाइन करके लिखो, लूज क्लोथ्स। और बूढ़े हो जाते हैं तो हम चश्मा भी पहनना स्टार्ट कर देते हैं। आजकल तो इसी एज में चश्मे लग रहे हैं, बट नॉर्मली क्या होता था, बूढ़े लोग पहनते थे चश्मा। क्यों? क्योंकि उनकी आई साइट, यस, क्योंकि उनकी आई साइट बुढ़ापे में जाके क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। मोस्टली बूढ़े लोगों को देखोगे आप चश्मा पहनते हैं। सो विथ स्पेक्टिकल्स ऑन नोज and pouch on side. What is the meaning of pouch on side? आपने उनकी स्किन देखी है कभी? कितनी लूज और कैसी हो जाती है एकदम। आपने देखा होगा उनका जो स्किन का जो बॉडी है, हाथ का, पाँव का, पेट का, इधर का सब ऐसे लूज हो जाता है। और इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है पाउच ऑन साइड, मतलब साइड साइड से उनका जो स्किन है वो लूज, पूरा बॉडी का बेसिकली लूज हो जाता है। So write over there, underline pouch on side, loose skin, write down loose skin. Or you can say hangs, skin hangs. Hangs मतलब लटक जाता है ना, लटक जाता है। His youthful hose वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड। उन्होंने मोस्टली कवर करते हैं, कपड़ों को क्या करते हैं वो लोग, पूरा लेग तक कवर, क्लोथ मतलब फिटिंग क्लोथ्स नहीं पहनते हैं, लूज क्लोथ्स पहनते हैं। वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक शैंक। उनकी बॉडी भी आपने देखी होगी थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है, मतलब श्रिंक हो जाना मतलब सिकुड़ जाती है। देखा है उनकी बॉडी जो है। अब जैसे मेरे फादर इन लॉ की बात कर लो, ही वॉज इन डिफेंस, वो फौज में थे और उनकी हाइट 6'1", 6'2" थी, अभी भी है, लेकिन अभी वो श्रैंक हो गए हैं, वो ऐसे चलते हैं, वो वॉकर लेके ऐसे चलते हैं। तो क्या हो गया ये, श्रिंक हो जाना, मतलब सिकुड़ गया उनका बॉडी। उनकी स्किन तो लूज हो ही जाती है, साथ ही साथ क्या हो गया, उनका बॉडी भी, पूरा बॉडी श्रैंक हो गया है, सिकुड़ गया है। And his big manly voice turning again towards childish treble, मतलब जो उनका एक यंग मैन की जो आवाज़ होती है ना, वो अब लिटरली, मेरे फादर इन लॉ का भी मैं बता रही हूँ, उनकी आवाज़ बच्चों जैसी हो गई है। मतलब बच्चे कैसे धीरे धीरे बोलते हैं, समझ में नहीं आता है, उनकी वर्ड्स जो है ना वो ऐसे थ हो जाता है ना, समझ में नहीं आता। जैसे बच्चे नहीं तोतलाते हैं बचपन में, वैसे मेरे फादर इन लॉ भी मतलब कुछ बोलते हैं, समझ में नहीं आता है कई बार। उनको मैं बोलती हूँ क्या बोला बाबूजी, फिर से बोलिए, फिर बोलते हैं अरे बेटा मुझे पानी लाते दो। मतलब वापस से क्या हो जाते हैं, वो बच्चे बन जाते हैं। उनकी आवाज़ वापस से क्या हो जाती है, टर्निंग अगेन टुवर्ड्स, सी द लाइन, फर्स्ट लाइन ऑन पेज 25, turning again towards childish treble. Okay, treble meaning 3 times weaker than, treble means 3 गुना वीक हो जाता है उनका। पता है उनको सांस लेने में तकलीफ होती है जब वो बोलते हैं, तो ऐसे सांस ले लेके बोलते हैं, तो 3 टाइम उनकी जो आवाज़ है वो दब जाती है, बचपन से भी ज़्यादा। पाइप्स एंड विसल्स, मैंने बोला ना हवा निकलता है उनकी बातों में, कभी कभी सीटियाँ हल्की सी हवा निकलने लगे, जैसे सीटी में हवा कैसे निकलता है, हम सीटी मारते तो कभी कभी सीटी नहीं निकलती, हवा निकल जाता है, वैसे ही उनकी बातों में हवा निकल जाता है। मतलब मुझे वर्ड समझ में नहीं आते हैं। जैसे देखो हम लोग की आवाज़ बैठ जाती है तो कभी कभी देखो हवा निकलता है, वर्ड्स हम बोलते हैं लेकिन वर्ड ही नहीं निकलता, सामने के कान में पहुंचता ही नहीं है हमारा वर्ड, तो क्या हो गया, वो सीटी में या विसल में कन्वर्ट हो गया। लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, और यही हमारा लास्ट स्टेज है जिसमें हम पूरा अपनी, देखा जाए तो अपनी इतिहास, अपनी जो स्ट्रेंज हिस्ट्री है वो ख़त्म हो जाती है। हमारा जो भी इतिहास बन रहा होता है फ्रॉम इन्फेंट से लेके डेथ तक का, वो जाके अब जाके ख़त्म होता है जब हमारा सेकेंड चाइल्ड हम बन जाते हैं। इज सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मोर ऑब्लिवियन,
और जब हम इस एज में आते हैं, इस डेथ स्टेज के जस्ट पास में आते हैं, एकदम लास्ट स्टेज में, तो हम ना अनकॉन्शियस हो जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। बहुत बूढ़े लोगों को तो क्या हो जाता है, भूलने की बीमारी हो जाती है, सुना होगा आपने, देखा भी होगा। वो समझ ही नहीं पाते, वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं बेड पे ही, उनसे गलती से वो जानबूझ के बेड पे जो भी है एक्सक्रीट या पी नहीं करते हैं, वो ओब्लिवियन हो जाते हैं। ओब्लिवियन मीन्स अनकॉन्शियस हो जाते हैं, उनको खुद को ही पता नहीं चलता कि उनसे कब पी हो गया ऑन द बेड, कब उनसे एक्सक्रीट हो गया ऑन द बेड। तो ये एक स्टेज होता है जहाँ पे न टीथ, सांस टीथ मतलब नो टीथ, नो आईज, नो टेस्ट, कुछ भी नहीं। सी द लास्ट लाइन, sans teeth, sans eyes, sans taste and sans everything। मतलब इस लास्ट स्टेज में तो कुछ भी नहीं, उसके बाद तो कुछ भी नहीं। लास्ट स्टेज में आपको मैंने बताया ना कि इस स्टेज में जाके आपको कुछ भी न खाने का दिल करता है, न कुछ दिखता है, न कुछ ढंग से आप टेस्ट समझ पाते हो, और ना ही आपके दांत होते हैं। देखा जाए तो इस स्टेज में, लास्ट स्टेज जो आपके मरने के टाइम पे होता है, उस टाइम पे कुछ भी नहीं होता। देयर इज नथिंग, sans everything means nothing। Got it? You all understood this poetry, the stages? Okay, now please tell me few figure of speech which is mentioned in the poetry. Figure of speech. Okay, this full poetry is actually metaphor. Yes, very good. The stage is compared with what? The stage is compared to our life, our real life, and the real stages of our life, right? Okay. Metaphor you said? All right. Full poetry is metaphorical, right? Okay, now in first line, is there any figure of speech? All the world stage? No. Second line, and all the men and women merely players. In this line, there is alliteration. How? You know what is alliteration? You know what is alliteration? Nobody knows what is alliteration? No one knows? Yes, repetition of sound. For example, in the second line, A sound is repeated twice and all. So which sound is repeated? A. So basically, repeat the sound. Okay, the next line, they have their exits and their entrance. In this line, alliteration तो is definitely there, EE. But one more figure of speech is mentioned. Repetition, who said? Very good, clap for him. Repetition, please mark over there in your textbook. Repetition of which word? Of which word? कौन सा word repeat हो रहा है? There, very good. In this actually word is repeated. Word repeats, okay? Please remember, I hope you all are noting it down. Antithesis. Yeah, very good. Antithesis. Amazing. So what is antithesis, beta? Can you just elaborate in one line? Opposite words appearing in the same. Very good. Contrasting ideas or the opposite words are mentioned in the line, in the same line. Exit करना और entry करना, ये क्या हो गया? Opposite word हो गया.
तो ऑपोजिट वर्ड जब भी होता है लाइन में, दैट विल बी कॉल्ड एज एंटीथेसिस. वेरी गुड, क्लैप फॉर हर. शी नो द डेफिनेशन ऑफ एंटीथेसिस ऑल्सो, जो कि कितने 12th के बच्चों को भी नहीं पता होता है. वेरी गुड. नाउ एंटीथेसिस के और दो भाई हैं, दैट इज ऑक्सीमोरॉन एंड पैराडॉक्स. ऑक्सीमोरॉन and then paradox. So that we will discuss the difference of all three. Once I will make one PPT and then I am going to show you up here, and then we are going to make out the difference between all three. For now, oxymoron and paradox is not useful in this particular poetry, but I am going to explain you separately all the figure of speech in my one lecture, in my one batch. Antithesis means यहाँ पे contrast, contrasting idea, or you can say contrasting words are there. Okay. Opposite, just you can write over there, opposite word. Alright, the next line. And one man in his time plays many parts. Only alliteration I can see. Next, his acts being 7 ages. At first, the infant. Again, alliteration, so definitely. Alliteration is the cheapest figure of speech. You will see every now and then in the poetry. Alliteration सबसे सस्ता वाला है, ये जहाँ तहाँ आ जाता है, क्योंकि वर्ड जो है ना, लेटर जो है, वर्ड का फर्स्ट लेटर वो रिपीट मिलता ही रहता है आपको. जैसे इस लाइन में क्या है, एक्ट्स का ए, एजेस का ए, राइट, एंड एट का ए, 3 ए है. Act, ages, at, yes. Next, mewling and puking in the nurse's arms. Alliteration, so I told you, it is very common. Okay, next line, then the winning schoolboy with his satchel. Again, alliteration. Okay, please tell me if any other figure of speech is mentioned in this poetry, if you know that. Simile, where? In which line? Like, the word like, you know na? Simile and metaphor ka difference you know? Simile and metaphor, you know the difference? Metaphor में like, as, such as ऐसे word नहीं होंगे, but in simile there will be the word like, as, such as, alike, ऐसा कुछ word रहेगा, तो these are the simile. I have seen in board exam कितने बच्चे इसको smile लिख के आते हैं, SI भूल जाते हैं. So don't forget the spelling of simile, SIMILE, simile. ओके, दोनों में कंपैरिजन होता है. जैसे आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल. आकाश वॉज अ लायन इन द वॉर. ओके, दिस इज वन एग्जाम्पल. नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल, आकाश fought like a lion in the war. Now what is the difference between these two examples? Can you make out the difference? पहले वाले में क्या लिखा है, आकाश was a lion in the war, and in the second one आकाश fought like a lion in the war. दोनों में मैंने आकाश को किससे कंपेयर किया है, किससे मैच करने की कोशिश की है, लायन से. मतलब वो काफ़ी बहादुर रहा होगा, काफ़ी ब्रेव उसने वहाँ पर परफॉर्म किया होगा, ब्रेवली. दैट इज व्हाई आई एम कंपेयरिंग आकाश विथ लायन.
लेकिन इस वाले लाइन में द फर्स्ट एग्जाम्पल आई हैव नॉट यूज द वर्ड लाइक, और यहाँ पर मैंने लाइक वर्ड यूज किया हुआ है. कैन यू सी दैट? So whenever, now you tell me which one is metaphor and which one is simile. First one is metaphor and this one is simile. Why? Why the second one is simile? मैंने अभी बताया ना कि simile में like, as, such as, a like word, ऐसे words होंगे तो वो होगा simile, right? Okay, any other figure of speech? Enjambment is there. You know what is enjambment? ये वर्ड सुना है कभी? एंजामेंट? नो वन? ओके, सी एंजामेंट में क्या होता है ना, पोएट क्या करता है ना, एक पर्टिकुलर कोई लाइन है, जो लाइन उस लाइन में आ सकती थी, बट पोएट क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन करके ये जो बचा हुआ लाइन है उसको वो नेक्स्ट लाइन में लिखता है. जैसे अगर मैं एक नॉर्मल स्टेटमेंट बोलूँ, माई नेम इज रूपा झा, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से माई नेम इज रूपा झा. अब मैं पोएट हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये पोएट्री का लाइन होता तो क्या करता पोएट, माई नेम इज उसने एक लाइन में लिखा और ये रूपा झा उसने नेक्स्ट लाइन में लिख दिया. तो क्या किया उसने, जो लाइन वहां आ सकता था उसको वहां नहीं लिख के, द राइटर, द पोएट हैज रिटन इन द फॉलोड लाइन, इन द नेक्स्ट लाइन दे कंटिन्यूड, द पोएट कंटिन्यूड द लाइन इन द नेक्स्ट लाइन. ऐसे आपकी पोएट्री में भी ऐसा लाइन है, जो लाइन वहीं के वहीं कंप्लीट हो सकता था, बट द पोएट कंटिन्यूड द सेम लाइन इन द फॉलोड लाइन. कैन यू जस्ट टेल मी फ्यू? Which line? Then a soldier, at first the infant वाला, see fifth line, at first the infant, वो continue हो सकता था, नीचे वाला mewing and puking वाला line. And then the lover, can you see, then the lover वाला line, that line is also incomplete. The rest of the words are written in the next line. Can you see that? And then the soldier, full of strange oaths, है ना? And then the justice, means all the stages of our life जो भी इस पोइट्री में मेंशन किया है उसमें एंजॉयमेंट है ही है हर जगह. लास्ट सीन ऑफ ऑल, पेज नंबर 25 पे सेकेंड लाइन देखो, दैट लाइन इज ऑल्सो एंजॉयमेंट, राइट? सो you all understood what is enjambment? Okay, please write down the spelling. Enjambment में basically B is silent. Okay, so we pronounce it how? Enjambment. Enjamb, ब नहीं बोलते हैं हम. Enjambment. B is silent, but we have to write B. उसको नीचे वाली लाइन में लिखो, then you will understand. Why don't you write a line from the poetry only? Poetry का वो line लिख लो if you are noting it down in your notebook. At first the infant, and then write mewling and puking in the nurse arm. Same as it is लिखो आप. Okay, now see page number 25. Read the words in given clouds, match them with what they signify. Stage, life, characters, role played by human beings, script, story of life, dialogues, match up. Now we are going to solve the questions. You all have understood the poetry, right? Any doubt in any word or in any line? Is it clear? This poetry is understood by you?
कोई ऐसा लाइन है, कोई शब्द है, कोई वर्ड है जो नहीं समझ में आया उस पूरी पोइट्री में? प्यूकिंग मीन्स उल्टी करना, रोना धोना, जैसे बच्चे लोग करते हैं। आपने देखा होगा ना बच्चों को कैसे करते हैं, सामान फेंकते हैं, यहाँ वहाँ रोते हैं, बॉडी ऐसे करते हैं। एंट्री birth, exit. Okay, now we have to write the role in the second question. Read the poem carefully and complete the following table. First one, role will be infant. Write down infant. You all remember the stages, right? What were there? Please tell me. Infant, schoolboy, lover, soldier. Very good. Then you can say judges jagah pe you can say adult, adult man, ADULT, adult man. Instead of judge and justice you can write adult man, जैसे आपके पापा लोग adult हैं. Then middle aged, then very old man. Write down in the role section. क्वालिटीज क्या है? इन्फेंट जब हम रहते हैं तो क्या क्या चीज करते हैं? वी क्राई, म्यूलिंग मीन्स क्राइंग, है ना? सो वी क्राई, वी प्यूक ऑल्सो, वॉमिट भी करते हैं बच्चे लोग. सो राइट डाउन क्राइंग एंड प्यूकिंग. प्यूक. स्कूल बॉय, पोइट्री में से बताओ स्कूल बॉय क्या कर रहा है? व्हाट द स्कूल बॉय इज डूइंग? Winning. First of all, he is winning. Second, creeping, creeping like a snail. Third, unwilling, unwillingness or unwillingly to go school, right? Unwillingly to school. Next, lover, woeful. Woeful means बेचारे वो दुख में रहता है, बेवफाई जो हो जाती है अगर तो कैसे रोता है वो, बेवफाई वाले गाने भी गाता है, राइट? वोफुल. आहें लेना, आहें लेना, SIGHING. कैन यू सी दैट वर्ड? Sighing like furnace. Sing sad ballad, sing sad ballad. Soldier, jealous in honor. Very good. Quarreling भी करते हैं वो. They also face danger. Soldier वाली लाइफ में हम danger भी face करते हैं. Can you see that? Which line? Middle line, I guess. नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. हाँ. Sudden seeking the bubble reputation. Okay. Next, adult man. What they do? They are fat. First of all, the foremost thing, when you are at your adult age, you are fat. You are serious for your life, serious towards the life. और वो एक और काम करते हैं जो मैंने आपको बताया था, giving advice. Very good. Wise advice. Middle-aged man. Yes. Lean मतलब पतले हो जाते हैं. और क्या हो जाते हैं? सेकेंड, shrunk भी हो जाते हैं. Shrunk, shrunk मतलब सिकुड़ना. Shrink का past tense is shrunk. Then they also talking in a shrill voice. Then last one is very old man. Childlike behavior. What they be? How they behave? Like a child. Oblivious. Oblivious means उनको unconscious हो जाते हैं वो. उनको loss memory जो होता है ना, memory loss, वो वाला problem हो जाता है. Inactive हो जाते हैं. You can also write over there inactive. In very old age, write down inactive. There is onomatopoeia also in this poetry. Can you tell me which line? Onomatopoeia.
6th line. Mewling and puking में mewling is a sound, okay? बच्चा जब रोता है तो आवाज करता है mewling. So that line is onomatopoeia. What is the spelling of onomatopoeia? O no. See here. Spelling of onomatopoeia. Please see here. Ono M-A-T-O. Mato po ia. Ia. Ono mato po ia. Remember the spelling. Close your eyes and remember it. You have to memorize like this, okay? Next, there is one more onomatopoeia in this poetry. Page number 25 पे है वो line. Whistles in his sound. Very good. Whistles, सीटी वाली जो आवाज होती है वो आ जाती है, उनकी आवाज जो है वो फिस वाली आ जाती है. Whistle. आवाज मिसिंग होने लगती है उनकी वर्ड्स. इन्वर्जन भी है. यू नो व्हाट इज इन्वर्जन? इन्वर्जन इज ऑल्सो वन ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच जिसमें ना वर्ड्स जो है वो ऑर्डर में नहीं दिए होते हैं. फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज रूपा, जा को लिखूंगी इज माई नेम मा रूपा या फिर झा रूपा, मतलब उल्टा पुल्टा करना. द वर्ड इज नॉट गिवन इन द ऑर्डर, then it is called as inversion. तो बताओ inversion कौन से वाले लाइन में है? लाइन नंबर 11. Sighing like furnace with a woeful ballad. इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? With a woeful ballad, sign like a furnace. Next, inversion लाइन नंबर 17 में भी है. With eyes severe and beard of formal cut. करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? Yes. Formal cut with eyes, नहीं. Formal cut of beard and then with eyes severe. मतलब आगे का जो है जो सेंटेंस वो पीछे आएगा और जो पीछे है वो आगे आएगा. The second part will be coming in first and the first part will be there in the second one. Okay? Okay, so that was it. Question number 7A, 26 page पे, please tell me. The poem is entirely metaphorical. मैंने पहले ही बताया कि जो पोइट्री है पूरी ये क्या है? मेटाफर है, वो हमारी लाइफ रियल लाइफ के ऊपर, राइट? So tell me, world is compared to what? Stage. Very good. Second, actors, players. Very good. You write in your textbook, actors, players, birth and death, entrance and exit, schoolboy, a snail. Very good. The lover's sigh, a furnace, spotted leopard, सोल्जर का वो दाढ़ी ऐसे लगता है जैसे कि वो लेपर्ड दिख रहा है. लेपर्ड कैसे रहते हैं बाल, वैसे वो दिख रहा है. आदमी की जो दाढ़ी होती है वो एकदम ऐसे लग रहा है जैसे कि वो एक लेपर्ड है. लास्ट स्टेज, सेकेंड चाइल्डिशनेस और सेकेंड चाइल्डहुड. वेरी गुड. Alright, so that was all about this poetry and the related question and answers. Now I would like you all to open page number 15.
And the name of the chapter is what is the name of the chapter? On Wings of Courage. And who is the writer? There is, I guess, no writer because it is factual, this one, the chapter. And it is all about one man's basically biography, that is Marshal Arjun Singh. He is from Air Force. एयर फोर्स के हैं कौन? एयर फोर्स मार्शल हैं and his name is Arjun Singh. Can you see his picture is given in the chapter? Now we have 3 ranks. The rank of officer in Indian Army are, first one is Navy, second one is Army, and the third one is Air Force. Now you can see a box is given on page number 14. You have to do actually you have to put the word in the appropriate boxes. Can you see 3 boxes are there? First one is Army, second one is Navy, and third one is Air Force. Now please tell me, commander will come under? No, it is a Navy. Write down in the Navy box, commander. Okay, the second word is brigadier, comes under Army, correct, Army. Brigadier comes under Army. Okay, wing commander, wing. नाम से लग रहा है विंग मतलब पंख, और पंख किसके होते हैं? एयरफोर्स एयरप्लेन के होते हैं, राइट, एरोप्लेन के. So wing commander comes under Air Force. Vice Admiral, Air Force. Squadron leader, Air Force. Major, Army, very good. Colonel, Army. Field Marshal, Army. Air Marshal, Air Force. Admiral of Fleet, Navy. Lieutenant General, Army. Flying Officer, Commodore, Navy. Rear Admiral and Air Commodore, Air Force. Now, in your second question, it is given homophones and homographs. फोन, फोन वर्ड में, फोन से अगर हम बात करें तो फोन क्या होता है? जिसमें हम सुनते हैं. फोन से हम क्या करते हैं? सुनते हैं. जो पहले का टेलीफोन की बात हो रही है, आजकल के मोबाइल का वीडियो कॉल का बात नहीं कर रही हूँ मैं, फोन की बात कर रही हूँ जिसमें हम सिर्फ सुन पाते थे. तो देखो पहला क्या लिखा है? वेयर. क्या लिखा हुआ है? दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन अगर फोन पे हम बोलेंगे तो वेयर ही बोलते हैं, वेयर. तो क्या हुआ ये? सेम साउंड हुआ. इसमें हम क्या देखते हैं? सेम साउंड. और ग्राफ मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राफ? मतलब टू राइट, स्पेलिंग. ओके, राइट ओवर देयर नियर होमोफोन साउंड and homograph spelling. होमोफोन क्या होता है? जिसमें सेम साउंड होगा. होमो मतलब सेम, सेम साउंड, सेम स्पेलिंग.
Okay, now make sentences to bring out the difference between these two. Can you make out the difference of this word? Wear, पहनना, yes. Wear. Make sentence on wear. I कुछ भी sentence बनाओ, yes. Jans is wearing his new shoes. Yes, wearing new shoes. I wore new shoes. I'm wearing blue color kurta. Okay, so that is wear. Now एक दूसरा है WARE, wear. What is that? The next one. WARE. Meaning, tell me. इसका pronunciation दोनों का same है. Wear. But the meaning is different. This is WARE. It is kind of container. WARE. Okay? Next. The next one is HERE and HEAR. दोनों को हम here ही बोलते हैं. Right? Here. What is the meaning of this here? Come here, इधर. I am standing here, he is sitting there. है ना? The books are here. The boy is sitting there. That is here and there wala. What is this here? To listen to. Can you hear my voice? Right? Sound की बात हो रही है. Okay. नेक्स्ट देयर एंड देयर. हाँ, ये तो बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं. मैंने बोर्ड एग्जाम में भी बच्चों के पेपर में देखा है, इसका मिस्टेक बहुत होता है. देयर और देयर. ये देयर क्या बताता है? पोजीशन. जैसे रोहन इज सिटिंग देयर, पूजा इज सिटिंग देयर. ओके, अनुजा इज सिटिंग देयर, वहां बैठी है. ये क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है, प्लेस बता रहा है ना? प्लेस पोजीशन कहां पर है वो. ये वाला देयर जो है ना बेटा, वो ओनरशिप बताता है. ओनरशिप या फिर पोजेशन. मतलब that plot is their plot, or this is their book, this class is their. मतलब पोजेशन बताना. जैसे तुमने अभी एग्जाम्पल, किसी ने पीछे बोला देयर का एक एग्जाम्पल. यस, वो तो पोजीशन हो गया बेटा. ये वाले देयर का स्पेलिंग बोल रहे हैं. ठीक है, होगा. I'm not good with this. Undo. Where is it? कहाँ हो रहा है? There. It is their book. और यहाँ पे I know their parents, their book, their class, their bag, their batch. मतलब उनका
क्लास, उनका पेन, ये उनका पूरा क्लास है, हमारा नहीं है, तो क्या है, ओनरशिप। तो ये देयर मतलब ये वहाँ पर है, रखा हुआ है, उस तरफ है, पोजीशन बताना हुआ, वहाँ है। और ये वाला देयर मतलब ये उसका है, उनका है, तेरा, उसका, मेरा, तेरा जो हम करते हैं ना, तो ये उनका है। और ये वाला देयर मतलब वहाँ है। पोजीशन समझ रहे हो? प्लेस और ओनरशिप में क्या डिफरेंस है? तो वहां पे लिख दो देयर में पोजीशन या प्लेस और देयर में ओनरशिप या पोजेशन। नेक्स्ट, सेल, सेल। एक है CELL सेल, एक है SELL सेल। दिस सेल मीन्स, इस सेल का दो मीनिंग है मेरे पास, तो हाँ, एक तो बैटरी, ओके, और एक सेल का मुझे जो मतलब पता है, जैसे कि केज, पिंजड़ा। एक और सेल होता है नर्व्स का सेल, है ना, हमारे बॉडी का सेल। और ये वाले सेल का मतलब टू सेल, पास्ट टेंस ऑफ सेल का, बेचना। ओके, नाउ राइट underline homographs in the following line. A bear is an omnivorous animal. यहाँ पे bear, bear क्या है, एक large heavy animal है, right over there, large heavy animal. She could not bear the injustice. She could not bear the injustice. यहाँ पे bear का मतलब क्या है, टॉलरेट करना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाई अन्याय को। एक बेर है टेडी बेयर वाला टेडी बेयर, और दूसरा बेयर है बर्दाश्त वाला बेयर। नेक्स्ट वन, अ बैट इज द ओनली बर्ड विच इज मैमल। अब यहाँ पे एक बैट, कौन सा बैट की बात हो रही है, चमगादड़। यस, इन हिंदी वी कॉल इट चमगादड़। इट इज एक्चुअली अ मैमल हु फ्लाइज and they sit on the branches upside down. You know that? Next, his bat broke as it struck the ball. जैसे उसने बैट मारा वैसे ही वो टूट गया, बॉल को जैसे ही उसने मारा बैट टूट गया। कौन सा बैट, क्रिकेट का बैट। वेरी गुड। सो इट इज एक्चुअली लास्ट बेंचेस wooden implement or wooden thing which we use for hitting a ball. Next, he had to pay a fine for breaking the traffic signal. Penalty, yes, जो हम पैसा देते हैं। Next one is use a fine cloth for the baby's clothes. Fine मतलब सॉफ्ट थोड़ा सा, क्योंकि बेबी लोग देखो कैसा सॉफ्ट कपड़ा पहनती है, वरना उनके बच्चों की जो स्किन के होते हैं ना, बहुत ज़्यादा रैशेस हो जाते हैं। सो दे ऑलवेज प्रेफर फाइन क्लोथ्स, सॉफ्ट क्लोथ्स। Next, and the last one, we enjoyed a lot at the temple fair. दूसरा है she has a fair complexion. तो पहले वाले का मतलब है मेला, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे गैदरिंग ऑफ स्टॉल्स होते हैं, है ना। आपने देखा होगा मेला लगता है, झूला भी होता है, बहुत सारे शॉप्स होते हैं। आप गए भी रहोगे, झूला झूला भी रहेगा। उसको कहते हैं FAIR वाला फेयर। और दूसरा भी FAIR ही है, लेकिन वो गोरा वाला है। जैसे दिस गर्ल इज फेयर, दिस गर्ल इज फेयर। फेयर मतलब कॉम्प्लेक्शन की बात हो रही है। ओके, नाउ why we have gone through the different officers of our Indian, this army, then navy, and then air force, because today we are going to see in this chapter about the Air Force Marshal Arjan Singh. अब एयर फोर्स मार्शल है तो कहाँ का होगा वो, कौन से वाले पार्ट का होगा,
एयरफोर्स का, ठीक है. सी द पिक्चर ऑफ अर्जन सिंह हियर, पेज नंबर 17. See the first paragraph. Everyone, please put your finger over there. In first paragraph, last benches especially, sit straight, sit straight. Open page 50. Page number 15. Air Force Marshal Arjan Singh, an icon of India's military history, will always be remembered as a war hero who had successfully led a young IAF during the 1965 Indo-Pak War. आपने कोई देशभक्ति वाली मूवी देखी है? कौन सी देखी है? बॉर्डर देखी है, और केसरी, केसरी या केसरी का नहीं, हाँ whatever. Then very good, सर्जिकल स्ट्राइक. और नहीं, सूर्यवंशम इज नॉट द पेट्रियोटिक मूवी. All right, so you know the difference between, you know how we have the difference between Pakistan. So at that time also in 1965, Indian Air Force also played decisive role or significant role in 1965. In that Air Force Marshal was Arjan Singh. ये एक आइकॉनिक मिलिट्री हिस्ट्री है जो शायद आपको पता नहीं है, बट इस पे भी देखना, जल्दी मूवी बनेगी. Will always be remembered as war hero. He actually called as the hero in that particular Indo-Pak war, and he was the Air Force Marshal. तुमको पता भी नहीं है what is the meaning of this marshal, what is the designation, what kind of powers they have. Yes, you boy. Second paragraph, read out.